very good evening to each and everyone present over here. This is Karan Joshi, the host of today's webinar, second day computer science department. I would like to welcome you all to this webinar. This webinar is all about introduction to web development. In this webinar, we are going to tell you that how a website is developed, how a web page is developed, what are the different components of the website, what are front end, what is back end, and how we can connect both these. And the fun part is that we are going to build a project today. So without wasting time, I would like to introduce my friend and the co-host of this webinar, Shivani, so that we can move forward. Shivani, you can introduce yourself and yeah. Thank you, Karan. Hello, good evening, everyone. I am Shivani Yoshi from second year computer science. Hope you all are fine. So we don't want to waste your precious time. So let's start. Guys, this webinar is all about website development. Now you need to know that how website's front end is developed. Front end of the website is made of three elements which are HTML, CSS and JS. Now if we talk about HTML, so HTML stands for Hypertext Markup Language. It is, basically a standard markup language for giving a static skeleton to web application and websites. It is a well standardized system and also known as body of a website. Now we move on CSS. Here CSS stands for Cascading Style Sheets. So it is a style sheet language that used to handle the presentation of the web page containing HTML. And yes, it makes our website beautiful and modern looking. Now we will talk about JS, which is also known as brain of website. JS stands for JavaScript, which is high level language, or we can say high level dynamic interpreted programming language. And with these things, front end of the website is made. Now I would like my friend Karan to continue. Yeah. So the theory part is all done. Now we focus on doing these things practically. Let me show you what we are going to build today. We are going to build a simple front-end landing page of a website. So this is the thing we are going to build today, a simple MACD website in which we have a logo here and a navigation bar, a simple button over here, some icons. And the fun part is that if you click on any images, you can see these are rendering over there like this. So we are going to learn that how we can build a simple web page, simple interactive and beautiful web page using HTML, CSS and JavaScript. So I already host this website into the internet. I will share a link soon in the chat box so you can check it on your own device. So this website is completely responsive. Like if you open this website on your mobile phone, it will render properly. If you open this on your tablet, it will render properly. Also, if you open into your laptop, it will render properly. So it's completely responsive website. And just we are using HTML, CSS and JavaScript to make this. So in the introduction, as we see that we need three files, which is HTML, CSS, and JavaScript. HTML provides the skeleton of the website, CSS provides the styling, and JS provides the interactivity, like functionality to a website. So I already created three files here, as you can see: index.html, style.css, and app.js. So there is no hard and fast rule that you put the same name, but we make sure you put the HTML file as an index.html, because when you are going to host a website, the hosting service need an index.html file which will serve as a home page for your website. So for HTML file, index.html name is mandatory, but for style CSS and JS, you can put any name there. Like you can put design.css, you can put your name also there, but it hardly matters. So let's jump into the coding part. So here is the index.html file. Some sort of code is written over here. I'll show you what is this. I'll explain each and every line. So start with the first line, which is written doc type HTML. What this doc type HTML works? What is the role of this? So it just tell our browser that we are using the latest version of HTML, which is currently HTML5. That is the only role of this tag doc type HTML. If you want to change the
Then came HTML tag. So it is the root element of a website. Also, you have to make sure that you have to know that in HTML, each and every tag has an ending tag. Let me show you. If I collapse this down, you can see there is a closing tag for HTML, which is /HTML. So in HTML, every tag has a closing tag except for one or two. Like image tag does not have a closing tag. It is a self-closing tag. You need to make sure. So what does HTML tag does that it tells the browser that inside this tag there is the text written is not just a simple text, but it is a HTML tag. It is the HTML code, right? So the next, like we discussed, HTML is a skeleton of a website. So in a skeleton, like we have a head, then body. Same here, we have a head tag. Similarly, it also has a closing head tag. Here it has a closing tag. Inside this, we put some of things that you have to know what are these. First is meta tag, which says that meta name is equals to viewport, content is equals to width is equals to device width. What this tag is responsible for the responsiveness of the website. Previously, this tag is not in the HTML. It is here in the latest version of HTML, which helps to make our website responsive so that it render properly into the mobile as well as tablet. So here it is written that content is equals to width is equals to device width. मतलब कि आपका जो भी कंटेंट होगा बॉडी के अंदर वो अपने आप ही आपकी जो डिवाइस की विड्थ होगी उस हिसाब से अपने आप को रेंडर करेगा. लाइक अगर आप 4K में देख रहे हो तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा. आप मोबाइल में देख रहे हो तो वो अपने आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. The second one is says title. Title, what is title of a website? If I open this website, here you can see written McDonald's. So like if I open Amazon, so वहाँ पे आपको Amazon लिखा आएगा. So these are the title of a website. Like see here it is written Amazon. तो ये होती है इसकी टाइटल. लाइक आपकी वेबसाइट का नाम क्या है. अगले टैग की बात करते हैं. तो यहाँ पे मैंने दो लिंक दिखाए इंक्लूड कर रखी है. पहली वाली है फॉन्ट ऑसम. फॉन्ट ऑसम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो आपको अलग अलग फॉन्ट्स यूज करने में हेल्प करता है. अलग अलग लेट मी शो यू हाउ वेयर आई यूज. अगर आप साइड में देखोगे तो एक गिटहब का आइकन है, एक इंस्टाग्राम का, एक लिंक्डइन का. तो ये सारे कहाँ से आए. तो इसके लिए या तो आप एक कुछ इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो या फॉन्ट ऑसम यूज कर सकते हो. तो फॉन्ट ऑसम काफी सही रहता है यूज करने के लिए. तो उसकी लिंक हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखी है. सेकेंड हमने स्टाइल डॉट सी एस एस. अब स्टाइलिंग जो है आप तीन तरीके से कर सकते हो. एक होती है इनलाइन स्टाइलिंग, एक होती है इंटरनल स्टाइलिंग, एक होती है एक्सटर्नल स्टाइलिंग. जब आप कुछ बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हो तो आप एक्सटर्नल में ज्यादा प्रेफर करते हो क्योंकि उससे कोड जो है क्लीन रहता है और सेपरेट रहता है. तो अगर आपने एक्सटर्नल सी एस एस यूज किया तो उसको लिंक तो करना पड़ेगा ना अपने HTML फाइल में. तो उसको हम लिंक टैग की मदद से यूज करते हैं. इसमें देखो यहाँ पे REL इज इक्वल स्टाइल शीट. मतलब वो बता रहा है कि जो आपने लिंक कर रखा है वो एक स्टाइल शीट है और उसका href मतलब लोकेशन कहाँ पे है आपके डिवाइस में. तो वो है स्टाइल डॉट CSS के अंदर ये जो हमने फाइल बना रखी है. तो ये इतना ही काम है हमारे हेड टैग का. नाउ केम बॉडी टैग. तो जितनी भी चीजें आपको हमारी वेबसाइट में दिख रही है यहाँ पे, ये एक लोगो है, यहाँ पे लिंक्स हैं, एक हेडिंग्स हैं, यहाँ पे पैराग्राफ है, बटन है, इमेजेस हैं. तो ये सारी चीजें आती हैं बॉडी के अंदर. तो जितना भी कंटेंट हमारा रेंडर होगा वेबसाइट में वो आएगा हमारे बॉडी के अंदर, राइट. तो मैंने अपनी बॉडी के अंदर एक सेक्शन बना रखा है. तो सेक्शन जो है प्री डिफाइंड टैग है अपना HTML का. तो इसका कुछ है नहीं, लेकिन इसके अंदर मैंने देखो इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्लास दे रखी है. तो क्लास क्या है. क्लास मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास इज नॉन यूनिक एट्रीब्यूट. तो क्लासेस और आईडीज दो होती है. आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, क्लास जो होती है नॉन यूनिक होती है. तो क्लास की मदद से हम क्लास इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि हम हमारी वेबसाइट में सिंगल सेक्शन तो होगा नहीं, मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं. तो उनकी वजह से डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे. तो हम हर एक पर्टिकुलर सेक्शन को एक एक क्लास या फिर एक आईडी दे सकते हैं. तो मैंने इसको क्लास मेन दी. तो मैं इसको बाद में स्टाइल डॉट CSS में डॉट मेन यूज करके उसको स्टाइल कर सकता हूँ. वो स्टाइलिंग सिर्फ इसी सेक्शन में यूज होगी और अगर मेरे पास दूसरा सेक्शन तो उसमें वो स्टाइल इंक्लूड नहीं होगी. तो दो दो सेक्शंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्लासेस या फिर आईडीज देते हैं. अगला टैग है डिव. डिव क्या होता है. डिव एक डिवीजन टैग है. तो आपकी वेबसाइट में देखो यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ काफी सारे एलिमेंट है. देख एक हेडर है, देन कंटेंट है, देन इमेज है, देन नीचे ये 4 इमेजेस रेंडर हो रखी हैं वो हैं. तो वो सब हम ऐसे हवा में तो लगा नहीं सकते. तो उनको एक प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश करने के लिए हम डिवीजन टैग यूज करते हैं. हम उसके अंदर डालते हैं. सेम डिवीजन को भी हम क्लास और आईडी दे सकते हैं ताकि हम उसको बाद में स्टाइल डॉट CSS से स्टाइल कर सकें. तो मैंने एक सर्कल बना रखी है क्लास. सर्कल यहाँ पे कहाँ पे यूज कर रखा है मैं दिखाता हूँ आपको. तो जो ये इमेज के पीछे देखो येलो बैकग्राउंड आ रहा है और अगर मैं यहाँ पे किसी और क्लिक करता हूँ तो देखो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है. तो जो कलर आ रहा है ना वो सर्कल क्लास के अंदर है. वो उसको हमने स्टाइल डॉट CSS से स्टाइल कर रखा है. वो अभी जब मैं CSS समझाऊंगा तब वहाँ पे पता चलेगा कि इसको कैसे कर रखे हैं हमने. देन केम टॉगल क्लास. टॉगल क्लास
जब आप इसको मोबाइल में खोलोगे तो ये ऐसे नहीं दिखेगी, मैं दिखाता हूँ ये कैसे दिखेगी। तो इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं मोबाइल में कैसे रेंडर हो रही है। तो ये अगर हम इसको खोलें एक मोबाइल में, देखते हैं खोलते हैं, तो देखो जो हमारे आइकन लिंक्स थे वो चले गए, यहाँ पे एक हैमबर्गर आइकन आ गया यहाँ पे। तो अगर इस हैमबर्गर आइकन में मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये नेविगेशन बार वर्टिकली खुल जाएगा। तो ये जो है टॉगल हो रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए हमने एक टॉगल क्लास बना रखी है। तो इस टॉगल क्लास का काम ये था, राइट। वापस से इसको खोलते हैं, कोड में आते हैं। अगला है हमारा दिस ए टैग। तो ए क्या है, ए टैग को बोलते हैं एंकर टैग। एंकर टैग क्या करता है, एक लिंक बना देता है आपकी वेबसाइट में। लेट से ए एचरेफ, एचरेफ मतलब उस आपको अगर उस लिंक में क्लिक करोगे तो कहाँ ले जाना है। अगर आपको कहीं नहीं जाना तो आप सिर्फ पाउंड का सिंबल लगा सकते हैं, यहाँ पे एक हैश का साइन लगा सकते हैं, तो आपका कहीं नहीं जाएगा, बस वो एक लिंक की तरह काम करेगा। अब उस लिंक के अंदर जो आप लिखते हो वो चीज वहाँ पे डिस्प्ले होती है। अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक हेडर के ऊपर एक सिंपल ए लिखा, तो जो वीएस कोड है वो ऑटो सजेशन दे देता है कि आप एक एंकर टैग यूज करना चाहते हो। मैंने एंटर करा। एचरेफ में मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ, एक फॉन्ट बना देता हूँ और एचरेफ के अंदर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। लेट्स से आई विल राइट KARAN एंड इसको सेव करा और इसको ब्राउजर में अगर मैं खोलता हूँ तो ये देखो यहाँ पे एक लिंक बन के आ गया जिसका नाम है करण। तो बस एंकर टैग यही करता है। अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर की साइट का लिंक दे देता हूँ एचरेफ के अंदर, तो वो साइट को खोल देगा। तो अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो ऐसे हमने इस एंकर टैग के अंदर एक इमेज डाल रखी है जो कि है हमारा लोगो। तो अगर मैं इस लोगो में क्लिक करता हूँ तो आप देखना एक पॉइंटर का साइन आ रहा है। तो ये लिंक की प्रॉपर्टी, अगर लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो कर्सर जो है हमारा पॉइंटर अपने आप हो जाता है। तो बस इतना ही है इसमें। हेडर, ये हेडर का रखा है। बाद में इसकी स्टाइलिंग कैसे करेंगे वो भी आपको स्टाइल जब हम CSS पढ़ेंगे तब बताऊंगा। तो अगला आता है यूएल। यूएल क्या होता है, यूएल होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक किसी का भाई होता है, वो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कि जो आपके लिस्ट आइटम है उसके आगे से कोई नंबर नहीं आएगा। ऑर्डर्ड लिस्ट करोगे तो आपके आगे से 1 2 3 या फिर कुछ स्टाइल में चेंज करोगे तो ABC ऐसे चीजें आ सकती हैं। तो जो यूएल है उसको भी मैंने क्लास दे रखी है नेव। तो ये क्लास नेव दे रखी है, उसके अंदर आता है एलआई। एलआई क्या होता है, एलआई होता है लिस्ट आइटम। एलआई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम, यानी कि आपके जो लिस्ट के अंदर है कितना आइटम चाहिए। तो होम, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ एलआई कहाँ पे है हमारा, तो ये खोलते हैं तो ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 लिस्ट आइटम्स हैं। होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस। तो इसको भी मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है एंकर टैग यूज करके, बट वो लिंक कहीं जा नहीं रही है। अगर जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो एचरेफ के अंदर जो है आप मल्टीपल पेजेस का लिंक डाल सकते हो। लाइक हमने होम है, होम तो चलो यही हो गया। अबाउट का हमने एक about.html बना रखा है मान लो, तो हम यहाँ पे about.html लिख सकते हैं। और सर्विसेज का अगर हमने कोई एक्सटर्नल पेज बना रखा है तो services.html। या फिर हम इसको कहीं कोई थर्ड पार्टी यूज करना चाहते हैं, मानो जो हम चाहते हैं कि अबाउट में क्लिक करके कोई अमेजोन की वेबसाइट में चले जाए, तो हम यहाँ पे amazon.com भी डाल सकते हैं विद प्रॉपर URL, राइट। तो दिस इज द वर्क ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम एंड एंकर टैग। अगला बात करते हैं कि हमारा कंटेंट। अब हमने कंटेंट के लिए एक नया डिवीजन टैग बनाया ताकि जो है हेडर और कंटेंट जो है सेपरेट हो सके। तो हमने एक बना रखा है कंटेंट। कंटेंट कहाँ पे हो रहा है, वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। तो जो ये हमारी यहाँ पे एक हेडिंग आ रही है, पैराग्राफ आ रहा है, बटन आ रहा है और जो साइड में इमेजेस आ रहे हैं, तो ये सब जो है हमारे कंटेंट क्लास के अंदर आ रहा है। तो कंटेंट क्लास के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने एक हेडिंग डाल रखी है, वेलकम टू द। और आप देखना आगे है एक BR टैग। पहले तो हम हेडिंग टैग देखते हैं। जैसे H2 लिखा है, ऐसे 6 हेडिंग्स होती हैं HTML में, H1 से लेकर H6 तक। तो मैंने यहाँ पे H2 यूज कर रखा है। देन BR स्टैंड फॉर ब्रेक। तो जो BR यूज कर रखा है, अगर मैं BR यहाँ से हटा दूं तो आप देखना क्या होता है। तो सेव करा और वापस से खोलेंगे तो BR टैग कुछ नहीं करता, बस एक लाइन ब्रेक कर देता है वहां पे, ताकि जो है अगला टैग जो है वो अगले लाइन में शो हो। देन स्पैन टैग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिवीजन टैग और स्पैन टैग में डिफरेंस क्या है। तो स्पैन टैग जो है ना वो अलग लाइन क्रिएट नहीं करता है, वो उसी लाइन में कंटिन्यू करता है। जबकि डिवीजन जो है वो एक अलग लाइन क्रिएट कर, मतलब एक अलग लाइन क्रिएट करता है। तो स्पैन टैग जो है अगर आप इस लाइन में चल रहे हो तो इस लाइन में रहेगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा। जबकि जो डिवीजन टैग है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है स्पैन। तो मैंने स्पैन की यूज कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ उसको। तो देखो मैकडी का कलर, मैकडॉनल्ड जो लिखा हुआ है ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है। तो इसको स्टाइल करने के लिए कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो ताकि ये अलग हो जाए। तो मैंने यहाँ पे पेन ले लिया ताकि हम इसको आगे स्टाइल कर सकें। अब आता है हमारे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग सिंपल है, पी लिखोगे तो जो विजुअल स्टूडियो कोड है आपका एडिटर जो है वो आपको खुद ही ऑटो कम्प्लीट करके दे देगा। तो पी का ओपनिंग टैग, पी का क्लोजिंग टैग। तो इसके अंदर जो भी है वो एक एज अ पैराग्राफ रेंडर होगा।
तो सिंपल है। अगला आता है ए, फिर से एक देखो ए। अब यहाँ पे अच्छी बात एक नॉलेजेबल पॉइंट है कि हमने यहाँ पे एक टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्लैंक क्यों लिखा है। तो टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्लैंक इसलिए लिखा है, अगर हम ये नहीं लिखते तो मैं क्लिक करता हूँ लर्न मोर जो बटन बना रखा है, इसमें क्लिक करोगे तो देखो मैकडी की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो एक अलग पेज में खुल रही है, उसी पेज में लोड नहीं हो रही है। तो ये काम होता है टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्लैंक का। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसको हटाया, सेव करा और इसको वापस से खोला और मैं इसको रिलोड करता हूँ, तो आप देखोगे ये इसी पेज में लोड हो रही है, कोई दूसरा पेज नहीं खोल रही है। तो ये काफी अनोइंग हो जाता है कई बार वेबसाइट में। तो हम यहाँ पे टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्लैंक यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देखोगे मैंने एचरेफ के अंदर मैकडी का ओरिजिनल लिंक डाल रखा है जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। तो ये काम होता है एचरेफ का। एचरेफ का आप के अंदर जो भी डालोगे वो आपको वहां ले जाएगा अगर आप इसके अंदर जो टेक्स्ट में क्लिक करोगे तो दिस इज सिंपल। देन आई हैव क्रिएटेड अ डिव फॉर इमेज बॉक्स। तो इमेज बॉक्स कहाँ पे यूज हो रहा है वेबसाइट में खोल के दिखाता हूँ। तो ये जो ये बर्गर और फ्राइज वगैरह लोड हो रहे हैं ना, तो वो सब एक इमेज बॉक्स के अंदर है। तो मैंने दो डिव बना रखे हैं, आप देखना टेक्स्ट बॉक्स और इमेज बॉक्स, और ये दोनों डिव है कंटेंट के अंदर। तो ये दो डिव इसलिए बना रखे हैं ताकि तो मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकूं, ऐसे हॉरिजॉन्टली सेपरेट कर सकूं। तो इस कैसे सेपरेट करना है वो दिखाऊंगा आगे। स्टाइल में फ्लेक्स बॉक्स यूज करा है मैंने यहाँ पे, तो वो स्टाइल से कर रखा है। देन केम थम। थम स्टैंड फॉर ये थंबनेल। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने थम इसलिए दिया क्योंकि थंबनेल को जस्ट शो करने के लिए। तो थंबनेल में यहाँ पे मैंने 4 इमेजेस डाल रखी है, बर्गर, कॉफी और फ्राइज और चिकन वगैरह इसकी। तो बस वही है। इसके अंदर देखो लिस्ट स्टाइल बना रखे, 4 लिस्ट आइटम बना रखे हैं और उसके अंदर एक इमेज डाल रखी है। तो अगर आप इसको अच्छे देखोगे तो इसमें एक है ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक जो है, ऑन क्लिक एक फंक्शन को कॉल करेगा जो कि है, फंक्शन का नाम है स्लाइडर। और स्लाइडर में जो है वो एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा फंक्शन जो है आर्ग्यूमेंट ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, और एक बिना आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन भी होते हैं। तो सेम हमने यहाँ पे एक फंक्शन स्लाइडर बना रखा है, उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट दे रखा है जो कि एक इमेज का पाथ दे रही है एज अ स्ट्रिंग। तो जो पाथ दे रही है वो स्ट्रिंग, तो हमने इसको बाद में जावास्क्रिप्ट से टैकल कर रखा है कि वो वहां से पाथ लेगा और बाद में वो जो साइड वाली इमेजेस को चेंज कर देगा। सेम हमने यहाँ पे कलर भी चेंज, अगर आप देखोगे इसको खोलोगे तो ये देखना कि कलर भी चेंज हो रहा है। अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो येलो हो जाएगा, इसमें क्लिक करूंगा तो ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, और इसमें क्लिक करूंगा तो ग्रीन हो जाएगा। देन ये सेम येलो, तो कलर भी साथ साथ चेंज हो। तो ये इंटरएक्टिविटी है, फंक्शनलिटी बोल सकते हैं इसको। जावास्क्रिप्ट के साथ, जावास्क्रिप्ट से कर रखा है कि जावास्क्रिप्ट से हमें कलर वगैरह चेंज कर रहे हैं। तो या एंड देन केम दिस आइकन। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में फॉन्ट ऑसम यूज कर रखा है। तो फॉन्ट ऑसम यूज करने का फायदा ये है कि आपका कोड छोटा हो जाता है, अब आपको इमेज वगैरह स्टाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप सीधे आइकन्स यूज करोगे। तो सिंपल मैंने 3 एलआई बना रखे हैं, उसके बाद एक एंकर टैग डाल लेकर और अपने गिटहब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का एड्रेस डाल रखा है। तो इसके अंदर देखो एक आई क्लास है, आई क्लास एक फॉन्ट ऑसम का मैंने कोड कॉपी कर रखा है सिंपली यहाँ से आई जो है। तो यहाँ से देखो गिटहब, इंस्टाग्राम और किसका लिंक्डइन का आइकन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हमारा फ्रंट एंड सिर्फ इतना ही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं स्टाइलिंग हटा दूँ तो कैसे दिखेगा हमारा फ्रंट एंड। सेव करा मैंने, इसमें से स्टाइल हटा दिया, बिल्कुल भी कोई स्टाइलिंग नहीं है इसमें अभी। तो खोलोगे तो ये ऐसे दिखेगा, देखो लोगो इतना बड़ा हो गया इसका, और ये इतना बड़ा हो गया, लिंक ऐसे आ गए, सब स्टाइल वगैरह सब हट गया इसमें से। तो ये शायद आप देखना पसंद नहीं करोगे। तो यही रोल होता है CSS का कि वो हमारी वेबसाइट को स्टाइल कर देती है। तो वापस से खोल के दिखाता हूँ, तो अब देखो कितने अच्छे से रेंडर हो रही है चीजें। तो वापस आते हैं स्टाइल डॉट CSS में। स्टाइल को हमने पहले लिंक कर रखा है, ध्यान रखना हमारे HTML में। ये देखो लिंक रिलेशन थ्रू स्टाइल शीट href हमने दे रखा है स्टाइल डॉट CSS। तो आते हैं स्टाइल डॉट CSS में। इसका कोड अपन समझते हैं। तो यहाँ पे जो है, पहले तो मैंने गूगल फॉन्ट्स इंपोर्ट कर रखे हैं, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट विंडोज वगैरह के फॉन्ट होते हैं वो काफी बोरिंग होते हैं। तो मैंने गूगल फॉन्ट्स, आप सर्च करोगे गूगल में fonts.google.com, तो वहां से मैंने पॉपिंग्स नाम की फॉन्ट है उसको इंपोर्ट कर रखा है, वो आगे यूज करूंगा। और जो यहाँ पे जो CSS में मेन चीज जानने की होती है वो थी सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होते हैं? तो जैसे अभी हमने HTML में टैग्स देखे, जितने टैग्स उतने सिलेक्टर। लाइक हमने H1 टैग पढ़ा तो H1 एक सिलेक्टर की तरह भी काम कर पाएगा, करेगा यहाँ पे। लाइक हमने सिंपली H1 लिखा, करली ब्रेसेस लिखा, और देन हम उसके अंदर जो स्टाइल करेंगे वो आपके HTML में जितने भी हेडिंग H1 टैग्स हैं उसमें अप्लाई हो जाएगी। तो यही ऐसी सिंपल होता है इसका CSS में कैसे काम करना है। तो पहला लिख रखा है मैंने एस्ट्रिक। एस्ट्रिक होता है यूनिवर्सल ऑपरेटर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, आई एम सॉरी। तो यूनिवर्सल, तो जो हमारा क्रोम ब्राउजर होता है वो बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन और पैडिंग देता है। मार्जिन क्या होती है? मार्जिन मतलब आपका एक, मान लीजिए एक डिव है तो उसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से क्या क्या कितनी स्पेसेस है वो होती है मार्जिन। पैडिंग मतलब
उस बॉक्स के अंदर अंदर से कितनी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कितनी स्पेसिंग है वो बोलती है पैडिंग। तो वो बाय डिफॉल्ट दे देता है, तो हमने उसको जीरो करने के लिए यूनिवर्सल ऑपरेटर लगाया, मतलब कि हमारा जो पूरा जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है उसकी मार्जिन इनिशियली जीरो कर दो और पैडिंग भी जीरो कर दो। देन हमने लिखा है बॉक्स साइजिंग इज इक्वल्स टू बॉर्डर बॉक्स। तो ये प्रॉपर्टी है कि हमारा जो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स मतलब कि जो कंटेंट है वो हमारे वेबसाइट से बाहर को ना भागे, मतलब जो है वो बॉक्स के अंदर ही रहे। फिर हमने फॉन्ट फैमिली हमने यूनिवर्सल ऑपरेटर में लगा दी ताकि हर जगह हमको फॉन्ट चेंज करना पड़े। तो ये तो सिंपल हो गया, उसका काम हो गया। देन मैंने बताया था हमने एक मेन क्लास डिफाइन कर रखी है सेक्शन में। तो ये काम होता है कि क्लास डिफाइन करने का ताकि हम वहाँ पे उसको स्टाइल कर सकें। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट हम सेक्शन यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे वेबसाइट में मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं। तो अगर मैंने सेक्शन लिखा तो जितने भी सेक्शन होंगे सब में स्टाइल लगा देगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्लास देखिए, क्लास को कैसे करते हैं स्टाइल में, डॉट लगाते हैं, डॉट फिर देन मेन, और आईडी कैसे करते हैं, आईडी लगाते हैं पाउंड का सिंबल एंड देन आईडी का नाम। तो जो मेन क्लास को यहाँ पे करेगा तो सिर्फ जहां जहां पे मेन क्लास इंक्लूड होगी वहीं वहीं पर स्टाइल करेगा। तो देखते हैं क्या स्टाइलिंग कर देगी। सबसे पहले लिखा है पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन यहाँ पे बहुत सारी टाइप की होती है, रिलेटिव, स्टिकी, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड। तो मैंने रिलेटिव करेगा। रिलेटिव का मतलब जो इसका रूट एलिमेंट है, रूट एलिमेंट एक वेबसाइट का होता है, वो होता है HTML का टैग। जो HTML टैग है तो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। तो हमने पोजीशन रिलेटिव दे दी, तो हम इसकी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेट कर सकते हैं रूट एलिमेंट के हिसाब से, रूट एलिमेंट के हिसाब से। तो रूट एलिमेंट यहाँ पे था HTML। तो HTML अपने जो उसके मेन पेरेंट एलिमेंट है, रूट एलिमेंट है, उसके हिसाब से टॉप पे से जीरो आ जाएगा, एकदम टॉप में चले जाएगा। लेफ्ट से एकदम जीरो मतलब एकदम कॉर्नर लेफ्ट में आ जाएगा। और देन हमने उसकी जो वो विड्थ दे रखी है यहाँ पे 100% दे रखी है मेन में। ये देखा मेन में जो विड्थ दे रखी है 100%, मतलब कि जो इसका जो जितना कंटेंट इसके अंदर है उतना उतना पूरी विड्थ ले लेगा एक। और द मिन हाइट इज इक्वल टू 100 VH। VH स्टैंड फॉर व्यू पोर्ट हाइट, मतलब कि जितना आपकी स्क्रीन साइज है उतनी हाइट ले लेगा। और मिन हाइट मतलब आपका डिवाइस कितना भी बड़ा हो जाए इसकी हाइट सिर्फ 100 VH ही रहेगी, उससे बड़ी नहीं होगी। देन हमने इसमें पैडिंग दे दी 100 पिक्सल की, मतलब जो इसके अंदर कंटेंट है वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से उसके बराबर स्पेसिंग आ जाए 100 पिक्सल अंदर की साइड से, ना कि बाहर की साइड से, क्योंकि हमने पैडिंग दी है, मार्जिन नहीं। अब आता है डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जो डिस्प्ले फ्लैग है आपको इसमें समझ में आएगा अच्छे से हेडर वाले सेक्शन में। तो आप आते हैं हेडर में। तो हेडर में पोजीशन दे रखी है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करती है, टॉप वो भी सेम काम होता है रिलेट का, बट वो रूट एलिमेंट के हिसाब से रेंडर नहीं होती है, पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से रेंडर होती है। मैं बताऊँ पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इधर खोलेंगे यहाँ पे तो देखो कि हेडर जो है किसके अंदर है, हेडर जो है सेक्शन के अंदर इसकी क्लास है मेन। तो सेक्शन जो हो गया पेरेंट हो गया और हेडर जो होगा चाइल्ड हो गया। तो अगर हम हेडर में पोजीशन लगाते हैं एब्सोल्यूट तो वो अपने पेरेंट के हिसाब से रेंडर होगा, ना कि रूट के हिसाब से, राइट। तो जो हेडर है वो जो मेन क्लास है उसके एकदम टॉप में आ जाएगा, उसके एकदम लेफ्ट में आ जाएगा। और विड्थ वही 100%, मतलब जो उसकी पेरेंट की विड्थ है ना उतनी पूरी विड्थ ले लेगा। पैडिंग सिंपल मैंने बताया था अंदर से। तो पैडिंग में देखो दो दो वैल्यू दे रखी है, इस बार दो वैल्यू। तो दो वैल्यू का मतलब होता है पहली जो होती है वो टॉप बॉटम होती है, अगली जो होती है लेफ्ट राइट होती है। तो टॉप बॉटम से सिर्फ 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 100 पिक्सल ये लगा रखा है। देन डिस्प्ले फ्लैग, यहाँ पे समझ में आएगा डिस्प्ले फ्लैग का काम क्या है। अगर मैं आपको इसको हटा के दिखाता हूँ, सेव करा, वापस से वेबसाइट खोली, तो ये देखो कैसा आ गया, दो लोगो जो है ऊपर चला गया, लिंक्स जो है उससे नीचे आ गए। तो इन दोनों को बराबर सेपरेट करने के लिए डिस्प्ले फ्लैग यूज करते हैं। फ्लैग बॉक्स एक प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद इसको यूज करने के बाद हम कुछ टू लाइन्स ऑफ कोड लिखते हैं जिसके वो अच्छे से अलाइन हो जाते हैं। जो होता है पहला है जस्टिफाई कंटेंट, यानी कि दो एलिमेंट के बीच में हॉरिजॉन्टली कितना स्पेस होना चाहिए। तो जस्टिफाई कंटेंट की मेनली आप तीन यूज करोगे, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली। एक होता है एक होता है सिंपल सेंटर करके। तो मैंने स्पेस बिटवीन कर रखा है, यानी कि जो हेडर के अंदर दो डिव हैं उनके बीच में बराबर की स्पेस आ जाए, राइट। एंड देन अलाइन आइटम क्या करता है, वर्टिकली आइटम्स को अलाइन करता है, यानी कि जो हेडर के अंदर जितने भी डिव हैं वो वर्टिकली सेंटर हो जाए, एकदम बीचों बीच आ जाए हेडर के। अगर मैं यहाँ से अलाइन आइटम हटा भी दूं और सेव करूं देखो आपको कुछ ज्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन अलाइन आइटम लगाने के बाद दिखेगा कि जो हमारे लिस्ट आइटम जो हमारे एलिमेंट है वो प्रॉपरली वो हो गए हैं, क्या एकदम अलाइन वर्टिकली अलाइन हो गए हैं। तो अब अगला आता है लोगों को स्टाइल करने के अंदर। लोगों की हमारी एक्चुअल जो विड्थ थी वो काफी ज्यादा थी, क्योंकि अभी मैंने आपको स्टाइल हटा के दिखाया था, तो उसकी विड्थ जो थी काफी ज्यादा थी। तो हमने उसकी विड्थ को छोटा कर दिया 100 पिक्सल, मैक्स विड्थ कर रखा है। ऊपर हमने मेन मेन हाइट यूज करा था, यहाँ पे हमने मैक्स विड्थ यूज कर रहा है। मैक्स विड्थ क्या करता है, आपकी डिवाइस जो है कितना भी बड़ा हो जाए उस लोगों का साइज जो है सिर्फ 100 पिक्सल ही रहेगा, राइट।
तो सेम हमने पोजीशन इसमें भी रिलेटिव दे रखी, कुछ काम तो है नहीं अभी यहाँ पे। रिलेटिव का मतलब कि रूट एलिमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। देन यूएल हमने ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट को वापस से डिस्प्ले फैक्ट कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि वही अगर डिस्प्ले फैक्ट हटा देता हूँ यहाँ से, तो आप देखना ये वर्टिकली आ जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे। तो वापस से अपना ब्राउजर खोलता हूँ, ये देखो ये लिंक जो है हमारे एक के ऊपर एक आ गए, पर ये ऐसे लिंक हमको पसंद नहीं है, तो सिंपली हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करेंगे। यहाँ पे आप फ्लोट यूज कर सकते हो, ग्रिड यूज कर सकते हो, हर एक एलिमेंट में पोजीशन लगा के उनको यूज कर सकते हो। लेकिन सब टेक्स्ट बॉक्स सबसे आसान होता है, सिर्फ 3 लाइन ऑफ कोड लिखना होता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। सेम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर, वही कर रखे हैं। अब जो लिस्ट है ना, तो अपने आप एक लिस्ट स्टाइल दे रही है अपने आप को, जो होती है एक डॉट आ जाता है लिस्ट के आगे से। मैं इसको हटा के दिखाता हूँ, अगर मैंने नन नहीं करा तो देखो छोटे छोटे डॉट्स आ गए हैं यहाँ पे। इन डॉट्स को हटाने के लिए लिस्ट स्टाइल को नन करना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे इसको अनकमेंट करेंगे और सेव करेंगे तो वो डॉट जो है हट जाएंगे। सेम वो अब आते हैं एंकर टैग को। तो जो लिंक होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट एक ब्लू कलर की शो होता है। जब आपको मैंने दिखाया था करण नाम का लिंक बनाया था मैंने ऊपर एक, तो वो ब्लू कलर में शो हो रहा था। तो जो वो होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, तो यहाँ पे हमने देखो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया और उसको एक कलर दे दिया। एक कलर कोड है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब वीएस कोड में इसको ऊपर होवर करोगे तो आप देखो यहाँ पे एक कलर पैटर्न खुल जाता है, तो यहाँ पे अपने आपका मनपसंद कलर सिलेक्ट कर सकते हो। देन केम फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट मतलब जैसे आपने कोई एमएस वर्ड भी यूज करा होगा, तो वहाँ देखा होगा काफी सारे होते हैं, बोल्ड, लाइट, लाइटर, या कोई फॉन्ट का वेट दे सकते हो। तो ये मैंने 400 दे दिया। अगर मैं इसको हटा के बोल्ड कर देता हूँ, तो आप देखो हमारी लिस्ट जो टैग्स हैं, ये देखो कितने एकदम डार्क से हो गए हैं, बोल्ड से हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको वापस से 400 कर देता हूँ, सेव करा। देन मार्जिन लेफ्ट, यानी कि मार्जिन लेफ्ट मतलब लेफ्ट से बाहर के साइड से कितनी मार्जिन आनी है। अगर मैं मार्जिन लेफ्ट हटा के दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा मार्जिन में काम होता है क्या एक्चुअली। तो वापस से आते हैं, ये देखो चिपक गए आपस में, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो बाहर से कोई स्पेस नहीं है, राइट, ये समझना। तो उसको अनकमेंट करा, वापस से खोला, देखो लेफ्ट साइड से सब में एक 40 पिक्सल की स्पेसिंग आ गई है। तो इतना, ये तो काम था हेडर। हेडर हमारे में स्टाइल हो गया, देखो काफी छोटा सा कोड था, कुछ है नहीं इसमें, बस स्टाइल कर दिया। देन आता है कंटेंट। कंटेंट मतलब कि जो बीच में रेंडर हो रहा है। तो आप देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कंटेंट के अंदर मैं 2 डिव बना रहा हूँ, एक था टेक्स्ट बॉक्स, एक था इमेज बॉक्स। वो 2 डिव इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं फ्लेक्स बॉक्स यूज कर सकूँ और उनको आपस में उनके बीच में एक गैप बना सकूँ। तो वही मैंने कंटेंट में डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखी है। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, यानी कि दोनों के बीच में बराबर स्पेस, अलाइन आइटम मतलब वर्टिकली सेंटर आ जाए। एंड विड्थ दे रखी है 100%, यानी कि जो अब पोजीशन रिलेटिव मतलब जो इसका पेरेंट एलिमेंट है, इसका भी पेरेंट एलिमेंट कौन है, इसका पेरेंट एलिमेंट है मेन क्लास, उसकी विड्थ ले ले पूरी पूरी 100%। अब आता है जो डॉट कंटेंट डॉट टेक्स्ट बॉक्स। इसका मतलब क्या है, यानी कि डॉट कंटेंट के अंदर जो डॉट टेक्स्ट बॉक्स है उसको स्टाइल करना है। अब जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, वो आप कितने भी कितने भी एलिमेंट में लगा सकते हो। तो यहाँ पे कि उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपने बाहर से लिख रखा है, जो डॉट कंटेंट है उसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसी को स्टाइल करना है। सेम पोजीशन रिलेटिव दे दी और उसकी मैक्स विड्थ दे दी हमने 600 पिक्सल। अब आते हैं वापस से H2 को स्टाइल करने के लिए। H2 ये है हमारा यहाँ पे, जो ये लिखा रहा है ऊपर से हेडिंग, ये हमारी H2 है। ऐसी 6 हेडिंग टैग होते हैं H1 से लेकर H6 तक, हमने यहाँ पे हेडिंग H2 यूज कर रखा है। तो उसमें हमने कलर दे रखा है, फॉन्ट साइज दे रखा है, यानी कि कितना बड़ा आपका कितना ज्यादा होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए आपके फॉन्ट का। लाइन हाइट दे रखी है कि यानी कि आपके जो हेडिंग टैग है उसकी पीछे से कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। एक होता है लेटर स्पेसिंग भी होता है। लेटर स्पेसिंग होता है कि आपके जो हेडिंग टैग के अंदर जितने लेटर है उनके बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए, तो हमने वो यूज करी नहीं है, यहाँ पे जरूरत नहीं थी। फॉन्ट वेट यहाँ पे यूज कर रखा है 500। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है या आपकी जो आपकी साइट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। अगला आता है स्पैन टैग। तो मैंने कहा था ना हमें कलर चेंज करना है, तो हेडिंग टैग में हमने कलर दे रखा है ब्लैक। अगर मैं स्पैन टैग को यहाँ पे कमेंट कर दूं और दिखाऊं, तो जो हमारा लिखा था ब्लू से वो भी ब्लैक हो जाएगा। ये देखो ब्लैक हो गया, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, तो हमको यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देंगे और कलर दे दिया हमने इसको एक आरजीबी, मतलब रेड ग्रीन ब्लू कलर कोड होता है। इसको होवर करोगे तो आप सिलेक्ट कर सको, याद करने की जरूरत नहीं है कलर कोड। ऐसे वो आप वीएस कोड यूज करोगे तो ये खुद ही आपको बता दे, ऐसे एक कलर पिकर खोल देगा, यहाँ पे अपने हिसाब से कलर चूज कर लो। फिर हमने पैराग्राफ को स्टाइल कर रखा है, कलर दे रखा है, कुछ ज्यादा बड़ा करा नहीं है। अब आता है हमने जो ये है कहाँ गया, लर्न मोर। ये जो बटन नहीं है, ये सिर्फ एक लिंक है, बटन नहीं बना सकते, लेकिन हमने लिंक को स्टाइल कर रखा है। देखो यहाँ पे सिंपल लिंक को बढ़िया से ये होवर करने में देखो बैकग्राउंड चेंज हो आ रहा है इसका। होवर अगर कर्सर बाहर ले जाऊंगा तो चेंज हो आ रहा है। तो ये सब कैसे करा वो दिखाते हैं। तो हमने सबसे पहले से मार्जिन टॉप दे रखी है, यानी कि जो लिंक है इसमें टॉप से 20 पिक्सल नीचे आ जाए। पैडिंग दे रखी है, यानी कि पैडिंग अंदर टॉप से दे रखी है 8 पिक्सल।
राइट। अगर मैं इसको 18 करके दिखाता हूँ आपको क्या होता है, 18 करा, सेव करा, तो देखो बटन वर्टिकली लंबा हो जाएगा। ये देखो वर्टिकली लंबा हो गया, यानी कि ऊपर से और नीचे से इसमें और स्पेसिंग आ गई है। तो वापस से इसको 8 कर देते हैं और लेफ्ट राइट 30 पिक्सल की स्पेसिंग। बैकग्राउंड बैकग्राउंड मतलब जो इसका बैकग्राउंड है वो क्या होना चाहिए, तो सेम एक कलर कोड दे रखा है मैंने। कलर मतलब जो फॉन्ट कलर है इसके अंदर जो हमने लिखा हुआ है Karan, उसका कलर क्या होना चाहिए, मैंने हैश। यस सर। sorry to disturb you, but instead of explaining every line of the CSS code, could you just explain the important things because we have a time restriction ओके ओके and there's श्योर Q&A श्योर। section left. तो आते, ओके ओके ओके। तो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे है होवर। होवर एक सूडो सिलेक्टर है CSS का। होवर करने में आपको क्या चेंज करना है, तो होवर करने में आप यहाँ देखोगे तो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है और फॉन्ट कलर चेंज हो रहा है, तो वही चेंज कर रखा है मैंने। बैकग्राउंड में एक बैकग्राउंड हमने एक्सचेंज कर दिया, यानी ये कलर और बैकग्राउंड को। आते हैं तो बाकी सब में सेम यही कर रखा है। एक यहाँ पे यूज हो रही है प्रॉपर्टी ट्रांसलेट एक्स, ये हमने यूज कर रखी है, यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे होवर में जो यूज कर रखे ट्रांसलेट एक्स, ये कहाँ पे यूज हो रहा है, अगर यहाँ पे जाते हैं तो मैं होवर करते तो इमेज जो थोड़ी ऊपर को उठ जा रही है, तो ट्रांसलेट वाई यूज कर रखा है हमने -15 पिक्सल, तो होवर करने में वो थोड़ा सा ऊपर को हो जाएगा। यहाँ पे सेम वही रिपीट हो रही है प्रॉपर्टीज। यहाँ पे एक यूज हो रखी है, ये है सूडो सिलेक्टर nth चाइल्ड। nth चाइल्ड मतलब जो li के अंदर जो पहला एलिमेंट है उस पर कलर कर दो ब्लू। लाइक यहाँ पे दिखाई देता हूँ, होवर करेंगे तो गिटहब में तो देखो उसका कलर हो जा रहा है ब्लू। एंड देन इंस्टाग्राम में होवर करेंगे तो देखो इसका कलर भी हो जा रहा है ब्लू। इसमें लिंक्डइन में करेंगे तो उसका भी कलर हो जा रहा है कुछ, जो मैंने कलर कोड वहाँ दे रखा है वो हो जा रहा है, ठीक है। तो अब बात आती है ये सबसे इम्पोर्टेंट था इसमें कि इसमें क्लिप पाथ यूज हो रखा है, जो सर्कल यूज हो रखा है देखो थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है, तो इसके लिए हमने क्लिप पाथ एक लेटेस्ट CSS में इंक्लूड कर रखे हैं इन लोगों ने। तो क्लिप पाथ में सबसे पहले आपको शेप देनी पड़ती है, यानी कि सर्कल, देन रेडियस, देन कहाँ पे दिखाना है और कितना वाई एक्सेस से कितनी पोजीशन होनी चाहिए उसकी, तो वो दे रखा है। तो बस इतना ही। अब आते हैं मीडिया क्वेरी में। मीडिया क्वेरी यूज होती है रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए। तो हम जब मैंने इस चेक करा तो मैंने देखा कि जब डिवाइस क्यूबिट 991 होते तो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, तो मैंने उतनी मीडिया क्वेरी लगा दी। और उसके बाद मीडिया क्वेरी के अंदर जो आप चेंज करोगे ना, तो बाकी कोड तो सेम रहेगा, बस जो मीडिया क्वेरी के अंदर लिखा हुआ है वो अपडेट हो जाएगा। यानी कि जब मैं अगर इसको 991 पिक्सल में खोलूंगा तो आप देखोगे सडन चेंज दिखेगा आपको कुछ वेबसाइट में। मैं इसको रिस्पॉन्सिव खोलता हूँ, तो अभी तो सब कुछ नॉर्मल है। जैसे ही अब देखना रिफ्रेश किया तो आप ऊपर देखते रहना, विड्थ को छोटा करते रहता हूँ करते रह रहा हूँ। जैसे 991 आएगा कुछ होगा, देखना ये देखो ये हुआ, यहाँ पे लिंक्स वगैरह हट गए और स्टाइल हो गए, तो ये होती है रिस्पॉन्सिवनेस। तो आगे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दैट्स इट फॉर style.css। अब आती है app.js, जावास्क्रिप्ट छोटा सा कोड है। क्या क्या चेंज हो रहा है मैं दिखाता हूँ, जावास्क्रिप्ट यूज कहाँ पे हो रही है। एक हो रही है इमेज क्लिक करने में, इमेज चेंज होने में, और दूसरी हो रही है बैकग्राउंड चेंज करने में। बस इतना ही जावास्क्रिप्ट यूज हो रहा है। और एक ठीक है, तो ये हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज कलर हमने फंक्शन बना रखा है, हमने वहाँ से इसको आर्ग्यूमेंट पास करा था कलर। तो जैसे जैसे उसमें सर्कल क्लास को हमने सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे जैसे जैसे उसमें ऑन क्लिक होगा तो ये फंक्शन रन होगा, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। सेम गोज विद इमेज। इमेज में यहाँ पे जैसे उसमें क्लिक करेगा कोई तो इमेज चेंज कर देगा। दैट ऑल फॉर app.js। एक इंपॉर्टेंट बात जावास्क्रिप्ट की, कैसे इंक्लूड करनी है जावास्क्रिप्ट, राइट। तो पहले तो इंटरनल यूज कर सकते हो आप। सेकंड एक्सटर्नल, यानी कि हमने एक स्क्रिप्ट टैग यूज करा, उसके अंदर सोर्स दे रखा है app.js। तो जो हमेशा याद रखना, जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो हमेशा अपनी वेबसाइट के एंड में यूज करना है, यानी कि बॉडी टैग के जो क्लोजिंग टैग होता है उसको ऊपर था। ये इसलिए करते हैं ताकि HTML CSS आराम से लोड हो जाए, उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड हो। अगर ये नहीं होती तो दिक्कत करता है। और इसका एक अल्टरनेटिव है, यहाँ से इसको कट करता हूँ मैं, ऊपर हेड टैग में भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है डेफर। यहाँ पे अगर आप लिखोगे डेफर यूज करोगे तो डेफर भी वही करता है कि जब जब पूरा आपकी बॉडी लोड हो जाएगी उसके बाद स्क्रिप्ट को लोड करेगा। तो ऐसे ही हमारा फ्रंट एंड रेडी हुआ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बट जो वेब डेवलपमेंट है इससे काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी कुछ कर सकते हो। मैं आपको दिखाई देता हूँ एक आध लिंक खोल के। तो एक फुल स्टैक वेबसाइट है जो सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट और थोड़ा सा नोड यूज़ करके बनाई है। लिंक दे दूंगा अभी आपको बाद में। तो इसमें आप दिखाता हूँ कि बैकएंड कैसे काम करता है फटाफट से। तो इसमें जो जो वेबसाइट अभी मैं खोल रहा हूँ, तो इसमें फ्रंट एंड में मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ कर रखा है, जो कि एक CSS की लाइब्रेरी है। और बैकएंड में नोड यूज़ कर रखी है। नोड क्या कर रहा है, इसमें एक API कॉल कर रहा है, और API की कॉल से हमको वेदर बता रहा है कि अभी करंट वेदर है क्या हमारा। तो चेक नाउ में क्लिक करा यहाँ पे, तो सिटी नेम डाला, लेट
पे चेक करते हैं भीमताल का वेदर चल रहा है वहाँ, तो सर्च में क्लिक करेंगे तो ये शो कर देगा कि यहाँ पे 7 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। पे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने जो क्वेरी डाल लिखी है यहाँ पे, तो यहाँ से उठाता है ये ऊपर जो हमने एपीआई है उसकी जो लोकेशन वहाँ पे इसको पुट करता है, और जो एपीआई से डेटा आता है जेसन फॉर्मेट में आता है, उसको एरे में कन्वर्ट करके उस एरे के डेटा को यहाँ पे शो करता है। तो ये ऐसी एक फुल स्टैक वेबसाइट शो होती है। तो जब भी बनाया था हमने, सिर्फ फ्रंट एंड था, ये बैक एंड भी इंक्लूड है। यहाँ देखो फैब आइकन भी आ रहा है अच्छा खासा, सब कुछ देखो यहाँ पे सर्कल घूम रहा है। ये होती है एनिमेशंस बोलते हैं इनको, इसी आप सीएसएस से कर सकते हो आप आराम से, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है इसमें। तो ये साइट होस्ट कर रखी है, मैं चैट बॉक्स में डाल भी दूंगा अभी, तो आप चेक कर लेना बाद में आराम से। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप द मैसेज ऑन द चैट बॉक्स। तो ये खोल लो, चेक कर लो कि कैसी है। you guys have any doubt you can unmute yourself or write on the comment chat box. Exact 991. So I guess you were talking about media query. So 991 is not any hardcore number, but it's just ये एक hit and trial के हेल्प से होता है कि अगर मैं देखूं 991 से पहले मेरी वेबसाइट एकदम सही से रेंडर हो रही है, लेकिन 991 के बाद जो एकदम से जो सडन वो हो रहा है कि अगर मैं मीडिया क्वेरी हटा के दिखाऊंगा तो आपको ये जो पैराग्राफ है एकदम यहाँ पे साइड में चले जा रहा है, तो ये पता नहीं है। तो मैं चेक करूंगा कि मेरी वेबसाइट खराब कहाँ पे हो रही है, तो वो मैं विड्थ चूज करूंगा। मेरी वेबसाइट खराब हो रही थी यहाँ पे 991 पिक्सल्स पे, तो मैंने वो उठा ली वहाँ पे। आप एक यूज कर सकते हो जैसे कि फिक्स यूज करते हो, जैसे कि फोन के लिए पहले से डिफाइंड है 460 पिक्सल से हमारे फोन की विड्थ शुरू होती है, टैबलेट की शुरू होती है 720 से, और लैपटॉप्स की यूज होती है 1024 से। तो ये कुछ आपको याद करनी है, आप कर सकते हैं, वरना आप सिंपली इंस्पेक्ट करो और खुद चेक कर लो कि मैनुअली कि आपकी साइट खराब कहाँ पे हो रही है, यानी कि रेंडर गलत कहाँ पे हो रहा है, तो वो भी चूज कर लो और उस हिसाब से स्टाइलिंग चेंज कर लो, मीडिया क्वेरी लगा। तो दैट इज 991 आई गेस ही वाज आस्किंग अबाउट। या एनी मोर डाउट यू कैन सिंपली आस्क लाइक दैट। बट इट्स पैडिंग ओके, तो पैडिंग लाइक मैं तो चलो यहीं पे दिखाते हैं। मैंने स्क्रीन प्रेजेंट कर रखी है, तो जहाँ पे ये यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन आ रहा है, तो ये एकदम सेंटर में कैसे आ रहा है, तो इसमें लेफ्ट देखो, लेफ्ट से एक स्पेसिंग है, राइट से एक स्पेसिंग है, तो ये है, ये होती है पैडिंग। ऊपर से एक स्पेसिंग है, नीचे से एक स्पेसिंग है, ये होती है पैडिंग। और अगर मैं मार्जिन की बात करूँ यहीं पर डिफरेंस देखने के लिए, तो जो पूरा कंटेनर है ब्लैक कलर का, तो ये जो यू आर प्रेजेंटिंग वाला कंटेनर है वो एकदम इसके कंटेनर के बीच में कैसे आ रहा है, तो हमने इसके जो यू आर प्रेजेंटिंग वाला है इसमें मार्जिन लगा दी है टॉप से। लेट्स से कि हमने 50 पिक्सल लगा दिया, तो ये ऊपर से एकदम 50 पिक्सल नीचे आ गया, नीचे से लगा दिया हमने 30 पिक्सल, तो देखो नीचे 30 पिक्सल आ गया, लेफ्ट से 10 पिक्सल, राइट से 10 पिक्सल, तो ये अपनी पोजीशन यहाँ पे ऐसे सेट कर लेगा। पैडिंग जो होती है वो कंटेनर के अंदर से जाती है, यानी कि हमने पैडिंग लगा दी 100% लगा, 100 पिक्सल लगा दी, तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब लगाते 100 पिक्सल की पैडिंग एक खुद ले लेगा। तो दिस इज कॉल्ड पैडिंग।